chapter 4, video 3. Today we'll be completing the remaining chapter. First of all, we'll discuss compressibility of matter. Compressibility मतलब आप मैटर को कितना कंप्रेस कर सकते हो, प्रेशर अप्लाई करके उसको दबा सकते हो. So compressibility is the ability to move the particles closer together. जब आप कंप्रेस करोगे मैटर को, दबाओगे, उसके पार्टिकल्स को आप पास पास लेके आओगे. Now we know that there are three states of matter: solids, liquids and gases. Compressibility is the most in the gases. Gases are highly compressible. Gases में हमें पता है the space between the particles is the maximum. So जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उन पार्टिकल्स को पास पास लाना भी ज़्यादा आसान होगा. In the liquids, they are slightly compressible. Why? Because there is space present between the particles but not too much. Then is solids. Solids are non-compressible. Solids को हम compress नहीं कर सकते because the space between the particles in solid, जो particles है solids के, उनके बीच की जो space है वो बहुत कम होती है. जो particles already पास है आप उनको ज़्यादा पास नहीं ला सकते. That is why solids are non-compressible. Here we are basically discussing activity 12 given on page 56 of the book. In the first piston and in the first syringe, we have taken chalk powder. You can take salt or sugar also because they are also solid substances. In the second syringe, water is taken, which is a liquid. In the third syringe, it is basically empty. Empty का मतलब उसमें बस air है, room की हवा ही है. Now the mouth of the syringe has been closed off using cork. नीचे cork लगा के syringe को seal कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है completely. And when we close the piston, जब आप syringe की piston को बंद करोगे, you will see in the first case, in the case of the chalk powder, हम piston को ज़्यादा press नहीं कर पाते, ज़्यादा pressure apply नहीं कर पाते. In the second, in the case of water, हम उसको थोड़ा सा स्लाइटली प्रेस कर पाएंगे बस. वी विल बी एबल टू अप्लाई जस्ट अ स्लाइट प्रेशर. उसके आगे हम उसको पिस्टन को क्लोज नहीं कर पाएंगे सिरिंज में. देन इन द केस ऑफ द थर्ड सिरिंज विच हैज़ एयर, इस केस में यू विल नोटिस दैट वी कैन पुश द पिस्टन ऑलमोस्ट ऑल द वे डाउन. पिस्टन को हम मैक्सिमम नीचे तक पुश कर सकते हैं और लास्ट में थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी जहाँ पे हम और पुश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि the particles of air have already come close enough. So what this is showing is, in the case of chalk powder, which is solid, we cannot compress, it is non-compressible. In case of water, which is a liquid, it is slightly compressible, थोड़ा सा compress कर पाएंगे हम इसको. In case of air, which is a gas, it is most compressible और highly compressible. इसको हम मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएंगे. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की हम स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और फ्रॉम गैस टू सॉलिड. हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? देयर आर टू मेथड्स. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर. सेकेंड इज बाय अप्लाइंग प्रेशर. Now when we increase the temperature of a substance, for example I take an ice cube in a vessel and I heat it up, what will happen? We have studied that the particles have kinetic energy. कोई भी state हो matter की, उसके particles में kinetic energy present है. So when the temperature increases, the kinetic energy also increases. We have discussed this also. तो जब आप ice को heat करोगे, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स में, जो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे थे, देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड द स्टेट ऑफ द मैटर विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड वाटर बन जाएगी. सिमिलरली इफ आई कीप हीटिंग अप द लिक्विड वाटर, अगेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो इवेंचुअली जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में या स्टीम में चेंज हो जाएगा बिकॉज द पार्टिकल
की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है. ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. जब टेम्परेचर कम किया जाता है तब काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी कम हो जाती है और पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं. सो द वेपर और द गैस कंडेंसेस टू फॉर्म द लिक्विड एंड द लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म द सॉलिड. सेकेंड थिंग कम्स, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस स्टेज पे आ जाता है या वेपर बन जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. दिस इज नॉट इन द बुक, दिस इज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज ओनली, बट यू शुड बी नोइंग दीज टर्म्स. और जब कोई वेपर डायरेक्टली आइस बन जाता है या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. Moving on to the next method, change of state by applying pressure. We have just studied compressibility in this video. Compressibility was maximum in the gases. Gases are most compressible, they are highly compressible. उनको compress करना बहुत आसान होता है. Liquids are slightly compressible and solids are not compressible at all. So जब आप एक गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते जाएंगे और इतने पास आ जाएंगे कि वो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी. द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज LPG गैस सिलेंडर्स विच वी यूज इन आवर हाउसेज. जो गैस सिलेंडर्स हम यूज करते हैं LPG के, द फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अब जो पेट्रोलियम गैस है उनको सिलेंडर्स में कैसे फिल इन किया जाता है. जो पेट्रोलियम गैस है उस पर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं. हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस एंड देन व्हाट हैपन्स, द पार्टिकल्स ऑफ द पेट्रोलियम गैस कम क्लोज इनफ. जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं पेट्रोलियम गैस के और इवेंचुअली वो लिक्विफाई हो जाते हैं. दिस इज हाउ दैट पेट्रोलियम गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर्स. The next topic comes changes taking place in matter. This is in the page 59. Here two types of changes take place in the matter. Physical change, chemical change. Physical change जब matter की सिर्फ state change होएगी, कोई नया substance नहीं बनेगा, जो particles की arrangement है वो same रहेगी, same atoms molecules रहेंगे, no new substances form, no permanent changes take place. Physical changes are mostly reversible changes. The examples are tearing a paper, stretching a rubber band, melting of ice, dissolving salt in sugar. आप easily salt और sugar को separate कर सकते हो. The next change is chemical change. वो change जो chemical composition में फ़र्क ले आएगी, जो atoms और molecules के arrangement को change कर देगी. Some new substance might be formed, some heat might be produced, light might be produced, smoke might be produced, a gas might be released. ये चेंजेस जो हैं दीज आर परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस. इन चेंजेस को आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड. एक बार जब हम खाना बना लेते हैं, फूड को कुक कर लेते हैं, वी कैनॉट गेट द रॉ इंग्रेडिएंट्स बैक. बर्निंग ऑफ वुड, sugar dissolving in tea, these things are the examples of chemical change which we cannot reverse. Now the difference between physical and chemical changes. First, physical change only affect the physical properties. वो मैटर में कोई परमानेंट चेंज नहीं लेके आता है, वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ मैटर माइट बी चेंज्ड, द शेप माइट बी चेंज, द साइज माइट बी चेंज्ड. केमिकल चेंजेस अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके अंदर आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती है. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं और आपका कलर, शेप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं. फिजिकल चेंज प्रोड्यूसेस नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं बनती, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड. फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस. एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिस तरीके से अरेंज थे वो वैसे ही अरेंज रहेंगे. ऑल्दो इन अ केमिकल चेंज new arrangement of molecules is formed and new type of substances are formed.
फिजिकल चेंजेस आर जनरली ईजी टू रिवर्स, यानी कि फिजिकल चेंजेस को आप रिवर्सिबल चेंजेस कह सकते हो, दे कैन बी रिवर्स्ड. केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, ये चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इनको आप दोबारा पहले जैसा नहीं कर सकते हो. नाउ दिस इज इट फॉर चैप्टर 4. विल बी स्टार्टिंग ऑन to the exercises from tomorrow onwards.